یہ منظر دیکھ کر شاید آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کسی کی مزار ہے۔ جی ہاں، یہ ہے تو مزار ہی، مگر کسی معمولی شخص کی نہیں، بلکہ ایک ایسے غیر معمولی شخص کی جسے تمام دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، گویا تعارف خود ان کے نام سے تعارف پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش شہر بریلی کے جسولی میں 14 جون 1856 کو شنیچر کے دن ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت بڑے تیز ذہن تھے۔ محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو خود کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت کی تیز ذہنی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی تو آپ اپنے استادوں کو بھی درست کیا کرتے تھے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ محض 6 سال کی عمر میں آپ نے منچ پر جا کر تقریر کرنا شروع کر دی تھی، جس سے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، اور صرف 13 سال کی عمر میں آپ کو مولانا قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلانے میں بھی ماہر تھے۔ آپ 105 زبانوں کی بھی جانکاری رکھتے تھے کہ دادا حضرت نے آپ کا نام احمد رضا خان رکھا تھا۔ آپ کا پورا نام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ محمد احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردہ کرا تو اس کے بعد حضور حجت الاسلام کو سجادہ نشین بنایا گیا، اعلیٰ حضرت کی گدی پہ بٹھالا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ کو بٹھالا گیا آپ کی گدی پر، اور جب آپ پردہ کر کے گئے تو حضور ریحان ملت کو ان کی گدی نشین بنایا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو اس وقت سجادہ نشین حضرت علامہ الحاج مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور ان کے بڑے بیٹے نائب سجادہ نشین ہیں، جو کہ ان کی دیکھ ریکھ میں تمام یہاں پر بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں۔ اور اسلامیہ اسکول میں جو بھی عرس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا، سب اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی پروگرام درگاہ شریف پر یا اسلامیہ انٹر کالج میں ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں، اور ولی عہد حضرت علامہ الحاج مولانا احسان رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تمام اہل سنت والجماعت کے مرکز کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مریدین اور حضور مفتی اعظم ہند کے پوری دنیا پورے ورلڈ میں۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ ایک نیچا کرتا پہنے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی وقت سڑک سے کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں۔ ان سے سامنا ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے فوراً کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر طوائفیں ہنسنے لگی، پر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں، آنکھوں کو تو چھپا لیا اور سطر کو کھول دیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تب سطر بہکتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کی یہ بات سن کر وہ سب دنگ رہ گئیں۔ ایسے کئی قصے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بریلی میں مشہور ہیں۔ سروس ان ریلیجن، اسپریچول لائف، تصوف اینڈ دی اسکالرشپ، اور وہ صرف دینیات، فقہ، حدیث، تفسیر یا علوم دینیہ ہی کے ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ جو آج کل کے یونیورسٹیوں میں ماڈرن میتھمیٹکس، سائنس، سائیکالوجی، فلاسفی، لاجک، ٹائمنگس اور بہت سارے سبجیکٹس، اکنامکس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ان سب میں بھی وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، جو ان کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے والوں نے ان کے ان تمام علوم و فنون پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام آج پوری دنیا میں اس طرح گونج رہا ہے، اور اس طرح اجالا برپا ہے جس طرح سورج کی کرنیں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ کر دنیا کے ہر خطے کو نور بار کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں۔ اور امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ایک ہندو عورت
उषा सान्याल ने उन पर बहुत कई साल पहले PhD भी किया है, जो अब वहीं की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गई है। इसके अलावा पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में अब तक आला हज़रत पर जितनी PhD हुई है, शायद ही 300 साल में पैदा होने वाले किसी भी मजहबी पेशवा, धार्मिक गुरु, स्कॉलर, फिलासफर, राइटर, पोएट, कवि वगैरह पर इतनी PhD की डिग्रियां दी गई हों। आला हज़रत ने महज 8 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिख डाली थी और लिखने का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर वक्त क़ज़ा पर जाकर ही रुका। आला हज़रत ने अपनी उम्र तमाम में गालिबन 1400 किताबें लिखी हैं, जिनमें से फ़तावा रज़िया सबसे मशहूर और मारूफ़ किताब है। फ़तावा रज़िया को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कभी आप इमाम आज़म नज़र आते हैं तो कभी इमाम सियूती। आपने फ़तावा रज़विया में कुरान से वाबस्ता सभी मसाइलों पर दलीलें पेश की हैं, जिसमें बड़े इत्मीनान से और मुकम्मिल तौर पर समझाने का प्रयास किया है ताकि मज़हबी मसाइल को आम शान मज़हबी आसानी से समझ सकें। जो मसले फ़तावा आलमगीर में अधूरे से महसूस होते हैं, उनको फ़तावा रज़विया में हम मुकम्मिल शक्ल में देख सकते हैं। फ़तावा रज़विया सैकड़ों किताबों का निचोड़ है। फ़तावा रज़विया में फ़तवे 4 ज़ुबानों में मिलते हैं। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी ज़बान का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस दौर में हज़ारों मसाइल थे जिनका ताल्लुक़ इबादत से लेकर मुआमलात तक फैला हुआ था। आला हज़रत ने उन मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए एक ऐसे अजीम कारनामे को अंजाम दिया कि क़यामत तक पैदा होने वाले बेशुमार और मुस्तक़बिल में होने वाली एक से एक आला खोज और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असर से पैदा होने वाले नतीजे से वाबस्ता ऐसे रहबरो रहनुमा उसूल आपने फरमा दिए कि आने वाली नस्लों को कोई मुश्किल न पेश आए। आपके सब काम महज अल्लाह के लिए ही थे, न किसी की तारीफ़ से मतलब था, न ही किसी की मलामत से। अल्लाह के लिए ही दोस्ती करते थे और अल्लाह के लिए ही दुश्मनी। कंजुल करामत दरियाए विलायत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने पूरी दुनिया में इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शमा जलाई। सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने तकरीबन 1400 किताबें हर ज़बान में लिखी और उनको 52 उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल था। जैसा कि और राइटर्स वगैरह दूसरे मुसन्निफ़ीन ने सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर किताबें लिखी और उनकी तारीख़ को उजागर किया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि आज जिससे पूरी दुनिया इल्म और इरफान के उस समंदर में गोते लगा रही है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा, उनका सिक्का आज पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में उनके मानने वाले मौजूद हैं। उनके उस शाख का आलम यह है कि जहाँ जिस मुकाम पर सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई मुआनिद अपनी ज़बान खोलता है, अपने मुँह को खोलता है, तो उनके उस शाख, उनकी ज़बानें बंद कर देते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीनी खिदमात में ऐसे ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि जब हम पिछले लोगों के, पिछले मुजद्दिदीन के तारीख़ को पढ़ते हैं तो हमें वो अज़मतें, वो रिफ़ातें, वो बुलंदियाँ, वो शान, वो शौकत मैसर नहीं आती और वो अज़मत हमें नहीं मिलती जो सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर मौजूद थी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर हमला करने वालों, उनकी बारगाह में उनकी अज़मत से खेलने वालों के लिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक शमशीर बेनयाम थे। ये है मदरसा और इसी के साथ वाबस्ता है रज़वी हॉस्टल। यहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि पाकिस्तान, मिस्र, अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल तथा कई अन्य ममालिक से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते हैं और बाकायदा
आलिम बन कर जाते हैं। मैं तो किशनगंज से आया हूँ। किशनगंज जो है गाँव का हमारा में रुइया बोलते हैं, वहाँ से किशनगंज से चल करके यहाँ बरेली शरीफ आया हूँ। और यहाँ की शोहरत काफ़ी है। यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे आते हैं, विदेश के बच्चे आते हैं, उसके बाद अफ्रीका के भी बच्चे पहले पढ़ते थे, और जो है जितने भी मुल्क हैं सभी से आते हैं। और यहाँ पर मौलाना की भी पढ़ाई होती है, मुफ्ती की भी पढ़ाई होती है, उसके बाद कारी की भी होती है, और हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। और मौलाना की पढ़ाई जो है लगभग जो है 8 साल लग जाती है, और हिफ्ज़ की पढ़ाई में कम से कम जो है 3 साल तो लग जाती है, और कारी का कोर्स करने में 2 साल 3 साल वो अपने ऊपर बात है। और मुफ्ती की पढ़ाई कम से कम 3 साल से होती है। और ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, जो आज ये बरेली जो मशहूर है, किसी आला हज़रत के जो है देन है, जो आप पूरी दुनिया में जानते हैं और पूरी दुनिया के लोग पहचानते हैं इस बरेली को। इस वक्त आला हज़रत की गद्दी के जानशीन सुभान रज़ा खां हैं। आला हज़रत ने बरेली में इस्लाम की शमा को जलाया, जिससे बरेली ही नहीं सारे हिंदुस्तान और बल्कि सारी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन हुआ। आपने हमेशा अहिंसा की तरफदारी की और इंसानियत का पैगाम दिया। आपने अरबी कुरान को अपने इल्म के ज़रिए उर्दू कुरान में अनुवादित किया, जिससे कुरान को समझने में सहूलियत हुई। इस उर्दू कुरान को कोई भी गलत साबित नहीं कर सका, सभी ने इसी को सही माना। इस उर्दू कुरान का नाम आला हज़रत ने कंजुल ईमान रखा, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आला हज़रत एक मजहबी आलिम होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी थे। आपने गज़लें, नज़में तथा रुबाइयाँ लिखी हैं। आपके कलाम में वह सब खूबियाँ हैं जो एक माहिर शायर में होती हैं। आला हज़रत का कहा हुआ एक शेर पेश नज़र है, चमक तुमसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुमसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बंदों पर भी बरसा दे ए बरसाने वाले। आपके शेरो सुखन में दर्द के साथ साथ अदब भी है। आप दूसरे शायरों की तरह सुबह से शाम तक अशार की तैयारी में मशरूफ़ नहीं रहते थे, बल्कि जब दिल करता था शेर लिख दिया करते थे। सरकार मोहम्मद साहब जो अल्लाह के नबी हैं, उनका कदम मुबारक का पंजा सरकार आला हज़रत साहब की बारगाह इलाही में रखा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि हर किस्म की दर्द व अज़ा आला हज़रत की बारगाह में आकर फना हो जाती है।